اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ابھی تک آواز کے والے سے آپ کو وہ سماعت خراشی آپ کی ہوگی لیکن اسے قبول کیجیے گا وہ جو رشتہ ہے میرا اور آپ کا محبت کا پیار کا اور اس میں یہ چھوٹی سی اگر چھوٹی موٹی ہرے ڈلے اسے میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں آپ بھی کریں گے ناظرین جب بھی کوئی بندہ روحانیت بھی آتا ہے جب بھی بندہ تصوف بھی آتا ہے دنیا بھر میں کسی بھی مذہب میں کسی بھی خطے میں جب بھی کسی بھی روحانی دنیا میں داخل ہوتا ہے کچھ تصوف میں آتا ہے تو اس کا ایک چیز سے ہر صورت میں واسطہ پڑتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے جب وہ اس پراسرار دنیا میں آئے اس پراسرار وادی میں آئے کہ وہ مشاہدات کرے وہ خواب دیکھے وہ نظارے دیکھے وہ باطن کے اندر جو کہ دنیا آباد اس دنیا سے اس کا کنیکشن ہو اس تک وہ پہنچے تو میں حیران ہو گیا شروع میں کہ بہت سارے لوگ جب ذکر اذکار کرتے ہیں تسبیحاں کرتے ہیں وہ ذکر اذکار کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں تسبیحات کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں عبادت پڑھائی سب کچھ کیے جا رہے ہیں لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے ان کے اندر نہ مچلتی دن رات خواہش مجھے کوئی خواب آئے مجھے کوئی مشاہدہ ہو مجھے کوئی نظارہ آئے مجھے کوئی زیارت ہو مجھے کوئی جن نظر آئے مجھے کوئی موکل نظر آئے مجھے کوئی فرشتہ نظر آئے مجھے کوئی اولیاء نظر آئے جب میں صاحب مزار پہ جاؤں تو وہاں میرا کنیکشن ہو صاحب مزار سے میں فیض لے سکوں اور دوسری بات ہے کہ میں آقا کریم کی کچہری میں جا سکوں میں سیر کر سکوں زمین آسمان کے لیے تو اس کے لیے اس پوری دنیا میں جو سب سے چاڑ جب میں روحانی دنیا میں آیا تو مجھے آتی ایک بات کی سمجھ آ گئی کہ اگر پہلی بات تو میں نے جب ذکر اذکار کیا تو میں آپ سے بھی یہ کہ التماس کروں گا کہ اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مجھے مشاہدے ہوں مجھے خواب آئیں مجھے معجزے ہوں کرامات ہو ساری تو یہ بیوقوفی ہے اس سے آپ کا نا سفر رک جاتا ہے شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے لیکن اگر جو میں آپ کو مشورہ دوں گا جب وہ کریں گے آپ نے کہنا اللہ میاں میں تیرے عشق میں کر رہا ہوں مجھے تجھ سے محبت ہے میں نے تیرے عشق میں کرنی ہے اب ہوتا کیا ہے جب بھی کوئی دنیا میں آتا ہے تو مراقبہ مراقبہ بنیادی سیڑھی ہے مراقبہ وہ کھڑکی ہے جس کے بعد آپ اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں مراقبہ وہ سیڑھی ہے جس کے بعد آپ اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں مراقبہ وہ ایک چیز ہے جس پہ سفر کر کے آپ ادھر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مراقبہ ہے کیا مراقبہ عربی کے لفظ رقب سے نکلا ہے جس کے معنی ہے دیکھنا نگرانی کرنا انتظار کرنا یہی سے پھر یا رقیب نکلا ہے یا رقیب الرقیب جو اللہ کا لفظ ہے اس کے مسلسل دیکھنا غور کرنا نگرانی اللہ کا دیکھنا یعنی کہ مراقبہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب آپ اپنی سینسز کو اپنے حواس کو اپنے دل کو اپنے شعور کو اپنے ساری تحت شعور کو کسی ایک نقطے پہ لگا دیں یعنی کہ یہ جو روحانیت ہے نا آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے کے لیے مولا کائنات نے کیا خوب بات کی ہے کہ تو نے خود کو کائنات کا چھوٹا سا ذرہ سمجھ رکھا ہے تو ذرا نہیں تیرے اندر ایک جہان آباد ہے وہ جو جہان آباد ہے اس تک پہنچنا کیسے ہے وہ جو روشنی ہے نور ہے سمندر ہے خدا کے جلوے ہیں اولیاء اللہ کی روحیں ہیں ماضی ہے مستقبل ہے حال ہے اور وہ جو روح ہے جب اس کو زمین سے اندر سے نکالنا ہے نکالنے کے بعد اسے زمین کی سیر کرنی ہے کبھی خانہ کعبہ جانا ہے کبھی مسجد نبوی جانا ہے کبھی اجمیر شریف جانا ہے کبھی نظام الدین اولیا جانا ہے کبھی کسی مزار پہ جانا اولیاء اللہ کی محفل میں جانا ہے صاحب مزار پہ جا کے ان سے کنیکشن کرنا ہے ان سے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنی ہے اس کے لیے کون سا ٹول ہے کون سا ہتھیار ہے جو ہوتا ہے وہ ہے مراقبہ یہ تو سمجھ آ گئی پرابلم کیا آتی ہے کہ مراقبہ سارے لوگ کرتے ہیں لیکن مراقبہ کامیاب نہیں ہوتا اس پروگرام میں آج انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ وہ شارٹ کٹ طریقے بتاؤں گا جس سے آپ کا مراقبہ کھلے گا آپ کا باطن آن ہوگا آپ کے اندھیرے کی چادر چڑھ جائے گی اور آپ روشنی اور سمندر کی اس دنیا میں داخل ہو جائیں گے جہاں پہ جلوے ہیں نور حق کے ان جلووں میں جب آپ غوطہ زن ہوگے ہوتا کیا ہے کوئی بھی صوفی جب مراقبہ اس کا آن ہوتا ہے مراقبہ آن ہونے کے بعد جلوہ حق کے جلووں میں مستغرق ہوتا ہے سر سے پاؤں تک الہی رنگ میں رنگا جاتا ہے پھر واپس دنیا میں آ کے رب کا نور بانٹتا ہے رب کا نور بانٹتا ہے میں اس لائن میں آیا نا میں جب اس لائن میں آیا تو میری ایک بابا اللہ صاحب سے بڑی ملاقات تھی پیار بھی تھا عشق بھی تھا اکثر آپ میرے منہ سے ذکر کرتے وہ مجھے کہنے لگے کہ میں کہیں کوئی مشاہدہ کوئی نظارہ کوئی میرے لیے خاص نہیں لیکن لاشور میں تھا کہتے پتر نشانہ پکا میں کہ کس کا نشانہ پکاؤں کہتا میرا پکا لو کہتا میرا پکنا مشکل ہے کسی لڑکی سے عشق کا نشانہ پکاؤ میں کیا عشق سے نشانہ پکاؤں یہ بات ادھر گئی پاپا جی کہہ رہے ہیں کسی لڑکی سے عشق کرو میں کہا مجھے عشق ہوتا ہی نہیں کسی سے اللہ نے مجھے شاید بنائے کسی اور کام کے لیے اپنے عشق کے لیے کہتے نہیں میرے کہنے پہ عشق پکاؤ اچھا میں نے وہ نا بابا جی کہنے پہ نا وہاں مری میں تھا تو ایک لڑکی قریب رہتی تھی اپنا میں راز شیئر سب سے کرتا ہوں میں نے اس کو ذہن میں لا کے نا غور کرنا شروع کر دیا غور کیے جا رہا کیے جا رہا ہوں وہ خیال کی طاقت اتنی بڑی کہ مجھے یاد ہے کہ مہینہ کے 1.5 مہینے بعد لڑکی ایک دن میرے گھر آ گئی تو مجھے آگے کہتی کہ مجھے سر درد دم کر دے تو میں کہا بیٹا میں میری منہ سے میں تو ویسے نشانہ پکا رہا تھا میں کہا بیٹا تم کیوں آئی ہو کہتی آپ بار بار میرے خواب میں آ رہے ہیں میں بابا اللہ تیجا صاحب کو فون کیا میں بابا جی یہ کیا ہے کہنے لگے اگر آپ کسی کا خیال کر کے ارتکاز کرتے تو اس تک آپ کی سوچ کی لہریں پہنچتی ہیں تو وہ جب بعد میں نے پھر اس پہ غور کیا
کہ रूहानियत में जब हम तसव्वुर शेख करते हैं, तसव्वुर रसूल करते हैं, तसव्वुर अल्लाह करते हैं, वो भी कहीं न कहीं मुराकबा ही है। या रूहानियत में मुख्तलिफ जो औलिया कराम है, दरवेश अपने स्टूडेंट्स को जब हमारी जो सात लताइफ है, सात लताइफ की तवज्जो का प्रयास करते हैं, लतीफ़ा, कलब है, सरीफ, जो मुख्तलिफ वो किस दिन फिर बहस कर लेंगे। वो भी कहीं न कहीं यही है। जब मुझे समझ आ गई ना कि मुराकबा ऑन ही हुए बगैर रूहानियत की सीढ़ी नहीं चढ़नी। जब मुझे समझ आ गई कि मुराकबा ही वो बुनियादी सीढ़ी है जिसमें कहा जाता है कि अंदर उतरना, लेकिन मैं कहता हूँ आप अंदर नहीं उतरते, आप अपने अंदर उतर के आसमान की तरफ जाते हैं। इस प्रोग्राम में आगे चल के मैं कुछ और वो अहम चीज़ें आपको बताऊँगा, शेयर करूँगा जो लोग नहीं करते, कि मुराकबा खुलने से पहले कुछ दिन या कुछ महीने, कुछ दिन बल्कि पहले इंसानी जिस्म एक बड़ी तब्दीली से गुज़रता है। इंसानी जिस्म के अंदर वो अलामतें, वो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं कि अगर आपको पता हो तो आपके लिए आसानी होगा। आज मैं उनसे जब शेयर करूँगा कि इंसानी जिस्म के साथ होता क्या है? एक नॉर्मल जिस्म जब कसाफ़त से लताफ़त में ढलता है और बॉडी के अंदर जो रूहानी यूनिट्स पड़े हुए हैं, उनमें जब तहरीक पैदा होती है, तो उसके बाद इंसानी जिस्म के साथ होता क्या है? वो सारी जब चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि रूहानियत जो है क्या? मुराकबे के लिए जो आम लोग गलती क्या करते हैं? तो ये तय हो गया कि मुराकबा क्या है और उसके बाद आगे जाके मैं बताऊँगा कि इसमें जब मुराकबा ऑन होता है, तो ऑन होने से पहले इंसानी जिस्म के अंदर कौन-कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, ताकि समझ आ जाए कि आप मुराकबे के करीब खुलने के करीब पहुँच गए हैं। एक बात, दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी कोई बंदा मुराकबा करता है तो मुराकबा होता नहीं। इंसानी ज़हन बड़ी अजीब चीज़ है। जब आप किसी चीज़ पे फ़ोकस करते हैं तो बार-बार ख़्याल इधर से आएँगे, उधर से आएँगे, इधर से आएँगे, उधर से आएँगे। आप बार-बार कोशिश करेंगे लेकिन आपका जो ना ज़हन एक नुक्ते पे फ़ोकस नहीं होता। मुराकबे का तसव्वुर ये है कि अपने दिलो-दिमाग, शऊर, लाशऊर को दुनियावी चीज़ों से हटा के किसी एक नुक्ते पे मुर्तकिज़ करना, एक नुक्ते पे इर्तिकाज़ पा जाना। जब आप इर्तिकाज़ पा जाओगे तो फिर आप रूहानियत की सीढ़ी पहली खिड़की आपकी खुल जाएगी। मुझे जब समझ आ गई ना, ये मुराकबा है, तो मैंने 4-5 कोशिशें की जो आपसे शेयर करूँगा। जब आप वो कोशिश करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएँगे, उससे मुराकबा खुल जाता है। आखिर में फिर मैं आपको तस्बीह भी बताऊँगा इंशाअल्लाह जैसे मुराकबा आसानी से खुलता है। जब मुझे समझ आ गई ना कि मुराकबे का मतलब ये है कि किसी एक नुक्ते पे फ़ोकस करना है, तो मैंने क्या किया, आप भी कर सकते हो। मैंने एक सफ़ेद पेपर लिया, उस पे दायरा बनाया और दायरा बना के ना काले रंग का जो रुपया जो सिक्का होता है उसके मुताबिक 2.5 फुट सामने मैंने दीवार पे लगा दिया। आपने एहतियात ये करनी है कि आपकी गर्दन के ऐन सामने हो, ना गर्दन ऊपर और नीचे, उसको आपने घूरना शुरू कर देना है। घूरी जाएँ, घूरी जाएँ, घूरी जाएँ। हैरानकुन बात ये है कि 20-25 दिन या महीने के अंदर वो दायरा वहाँ से गायब हो जाएगा। दायरा वहीं पे मौजूद है लेकिन वो आपके लाशऊर ने नई दुनिया दरियाफ़्त कर ली है। आप उसे घूरी जा रहे हैं, घूरी जा रहे हैं, घूरी जा रहे हैं, तो महीने डेढ़ महीने बाद एकदम वहाँ पे बादल आने शुरू हो जाएँगे, बागात आने शुरू हो जाएँगे, समंदर आने शुरू हो जाएँगे, तो आप समझिए कि आपका मुराकबा होने की तरफ हो गया। एक तो निशानी ये है। दूसरा मैं क्या करता था कि मैं खड़ बैठ जाता था और साँसों से मैं ख़्याल करता था कि मेरी जो नाक है ना, एक तरफ से नूर जा रहा है, दूसरी तरफ से नूर आ रहा है। नूर अंदर जा रहा है, आँखें बंद करके और नूर आ रहा है। एक दूसरा हो गया। तीसरा मैं ख़्याल करता था मैं खुले आसमान के नीचे बैठा हूँ, आसमान से नीले रंग का नूर गिर रहा है। मेरे पूरे जिस्म से क्रॉस करके वो आगे जा रहा है। वो सबसे अहम मैं क्या करता था, रात को मैं सो जाना करना, तो ख़्याल करना कि नूर का एक छोटा-सा गोला जो मेरे बाएँ पाँव से दाख़िल हुआ है, वो ऐसा-ऐसा मेरे ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर आ रहा है, ऊपर पर दिल पे आ गया, दिल के बाद दिमाग में चला गया, दिमाग के बाद दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। इस सारी कोशिशों में जो मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा जो ना ज़हन, ख़्याल, शऊर, लाशऊर एक नुक्ते पे ठहर जाए। आप हैरान हो जाएँगे, जब मैंने ये किया तो काम होना शुरू हो गया। अब जब आप सिक्के को दीवार पे घुरेंगे, जब दिल पे अल्लाह के तसव्वुर करेंगे, कुछ लोग क्षमा भी नहीं करते थे, कुछ लोग चाँद भी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ लोग तसव्वुर शाह करते हैं, कुछ लोग तसव्वुर महबूब करते हैं। जब आप ये सारा प्रोसेस करते हैं ना, तो आखिरकार आपका जो लाशऊरी मज़म्मत वो दम तोड़ देती है। फिर आखिरकार आपका इर्तिकाज़ आना शुरू जो फिर लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे? गलती कल कभी भी मुराकबा भरे हुए पेट के साथ नहीं होता। मुराकबा जब भी करना है खाली पेट में करना है। मुराकबा जब भी करना है कोशिश करना है, अगर आँखें बंद करके तो अंधेरे में करना है। मुराकबा जब भी करना है जहाँ बैठे हैं वहाँ पे अगर आप काबे की तरफ बैठिए तो काबे से 45 अगर राइट लेते हैं ज़्यादा बेहतर है। तीसरी गलती करते हैं, मुराकबा जब करते हैं गर्दन सीधी रखते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ गर्दन आपने ऐसे सीधी करनी है। इस तरह मुराकबा नहीं होता और आँखें जब गर्दन सीधी होती है, हमारी जो बॉडी का सेंट्रल पार्ट जो लतीफ़ा ज़ेरे-नाफ़ कहते हैं, वहाँ से रोशनी जब ऊपर चढ़ती है, वो आपकी तीसरी आँख की तरफ आके आपका मुराकबा खोल देती है। जब आप मुराकबा इस तरह करें, दूसरी गलती एक और जो लोग करते हैं, तरके जलाली जमाली का बड़ा ज़िक्र आता है कि अगर आपका जिस्म लाइट है, जिस्म हल्का है, अगर आप सब्ज़ी-खोरी पे रहते हैं या मीठा कम खाते हैं, तो उससे आपका जिस्म लाइट रहता है, रूह लाइट रहती है। आप रूहानी एक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं। उन्हीं दिनों मुझे किसी बंदे ने बताया कि सूफ़िया कराम हब्स दम करते हैं। हब्स दम क्या है? आपने साँस ली, अंदर रोक ली। साँस ली, रोक ली, रोकने के बाद आपने ये प 20-25 सेकंड से शुरू होगी। चलते-चलते 2 ढाई मिनट से 4 मिनट तक चली जाएगी, 2-4 मिनट तक चली जाती है। जब पर सूफिया कराम कहते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट कहते हैं दुनिया के, जब आप मुराकबा रोक लेते हैं,
साँस रोक लेते हैं तो आपके रूहानी यूनिट्स ऑन होना शुरू हो जाते हैं, आप इर्तिकाज़ पाना शुरू कर देते हैं। करके जलाली भी करना है, तन्हाई में करना है, अलहदगी में करना है, मुराक़बे की एक और शक्ल है कि आप किसी बाग में बैठ जाएँ, आसमान के नीचे बैठ जाएँ, अपने ज़हन को खाली कर लें। अब जब आप मुराक़बा शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका मुराक़बा कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, तो आपका जिस्म मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से मुख्तलिफ़ अलामतें आपके जिस्म पे नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। वो क्या होती हैं, जब आप मुराक़बा शुरू होते हैं, तो आप गनुदगी सी आनी शुरू हो जाती है। नींद सी आपकी आनी शुरू हो जाती है। जब आप बैठते हैं तो आपके जिस्म पे एक ना इस्तगरा की कैफ़ियत तारी होना शुरू हो जाती है। एक दुनिया से डिस्कनेक्शन का आलम आना शुरू हो जाता है। आँसू आने शुरू हो जाते हैं आपके जिस्म से। आपके जिस्म पे कँपकँपी तारी होना शुरू हो जाती है। आपको झटके लगते हैं जब आपकी यूनिट्स ऑन होती है। मैं शुरू में डर गया था, मुझे झटके क्यों लग रहे हैं? झटके लगते हैं, बाज़ को मैं गिर जाता झटके लगने से। और सबसे हैरानकुन काम क्या होता है कि आपको रोशनियाँ नज़र आती हैं। जब रोशनी नज़र आती है, तो मैं अकेले कमरे में होता था, मैं अपने ब दौड़ के रज़ाई में चले जाना, आँखें बंद कर लेना, वो ज ज ज वो रोशनियाँ फिर भी नज़र आती थी। हैरानकुन बात है कि वो रोशनियाँ आपको नज़र नहीं, आपके बातिल को नज़र आ रही हैं। आप रज़ाई में चले गए, आप कंबल में चले गए, आँखें बंद कर रहे हैं, आपको रोशनियों के जुगनू नज़र आते हैं। उससे बड़ा झटका आपको तब लगता है जब आप वॉशरूम बैठे हैं, वहाँ भी जो रोशनी रोशनी के जुगनू टिमटिमा रहे हैं। यानी कि आपका रोशनी की दुनिया से मुतारफ़ हो रहे हैं आप, आपको रोशनी वहाँ भी नज़र आती है, वहाँ भी आती है। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सरसराहट होती है, जो हमारी यूनिट्स रूहानी मुख्तलिफ़ यूनिट्स पड़े हुए हैं, उन पे अलहदा बहस की लताफ़ सित्ता कहते हैं, या हिंदू उनको चक्रास कहते हैं। किधर उसमें बात करें, वहाँ पे सनसनाहट का एहसास होता है, बेदारी का एहसास होता है, वहाँ पे हरकत का एहसास होता है, दिल के ऊपर ठंडक का एहसास होता है, दिल के ऊपर हल्की-हल्की ना ये हरारत का एहसास होता है, बाज़ का दिल धड़कने का एहसास होता है, और बाज़ का मीठा-मीठा सुरूर आप पर, बाज़ का आप ना आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ आवाज़ें आप लोगों को नहीं आप सुनाई दे रही हैं, आपको खुशबुएँ आपको आती हैं, लोगों को खुशबुएँ नहीं आती, आपको आनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह की याद शिद्दत से आती है, अल्लाह की याद इतनी आती है, मुझे अभी भी याद है कि मैं बाहर अपने लॉन में बैठ जाना करना, मेरी आँखों से आँसू निकले जाने, मुझे समझ नहीं आनी। आपका जिस्म एक तब्दीली से गुज़रता है, आपकी आँखों से आँसू मसलसल बह रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों बह रहे हैं। उसे मैं कहता मन की उदासी, मन उदास है, वो रूह उदास है कि मैंने रब की तरफ जाना है। और फिर ना अजीब-सी सुरूर, अजीब-सी मस्ती, अजीब-सी खामोशी, और रब शिद्दत से याद आता है कि रब किधर है, क्यों है, मैं यहाँ क्यों? और जो दूसरी बड़ी बात है, गोशानशीनी की तरफ बंदा जाता है। दुनिया से दिल उकता जाता है, कहता है मैं गोशानशीनी की तरफ जाऊँ, मैं उधर जाऊँ, फिर इल्हाम, कशफ, वजदान की सलाहियतें ऑन होती हैं। वो वक़्त मुझे अभी भी याद है जब आपको आने वाले वाक़यात का एहसास होना शुरू होता है। आप कहते हैं कल ऐसे हो जाएगा, वैसे हो गया। आप कहते हैं ऐसे ना हो जाए, वो सुबह वैसे हो जाता है। या आपको प्राइज़ बॉन्ड नज़र आने शुरू होते हैं, या आने वाले खुदा ना करे किसी की मौत, किसी का हादसा, किसी की खुशी, या किसी की मेहमान की आमद आपको पता चल जाना फलाँ बंदा आने वाले वाक़यात का पता होना है। यानी कि आपके रूहानी यूनिट जब ऑन होते हैं, कायनात के सुपर कंप्यूटर से जब लिंक्ड होते हैं, तो आपके बहुत सारे कशफ, इल्हाम, वजदान आपका ऑन होना शुरू हो जाता है। सबसे अहम बात, औलिया अल्लाह की रूह नज़र आनी शुरू होती है, जिन्नात नज़र आना शुरू होते हैं, मुख़ल्लात नज़र आना शुरू होता है, अपना हमज़ाद नज़र आना शुरू होता है। और मुराकबे का इंतहा उस वक़्त होती है जब आपका जिस्म, आपकी रूह निकल के आपके बाहर खड़ी होती है। यानी कि ये वो अलामतें, ये वो साइन है जब आप किसी की खुशबुएँ आती हैं, रोशनी आती है, नूर आता है, जिस्म में झटके लगते हैं, और उसमें मुख्तलिफ जो मैं तहरीक जिस्म में मुख्तलिफ होती है। और सबसे बड़ी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, आपकी कमर से ना कोई चीज़ ऊपर चढ़ती है बार-बार। आपको फ़ील होता है कमरे पे कोई हाथ फेर रहा है, वो कमरे पे कोई हाथ नहीं फेर रहा होता। कमरे पे बाहर जैसे कोई साँस हो, वो रोशनी जो हमारा सेंट्रल पावर है, लतीफ़ा ज़ेर-ए-नाफ़ कहते हैं हम। हिंदू उसे सेंट्रल पावर शक्ति कुंडली कहते हैं, कि वो कहते हैं कि वहाँ पे रोशनी है, नूर का वो जो देवता है, वो हम तो उसे नहीं मानते। वो बैठा है, जब उस रोशनी का अखराज होता है, फिर पीछे से ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद में जो आपकी तीसरी आँख, ये एरिया है, यहाँ पे सनसनाहट होती है, हरकत होती है। सर में हल्की-हल्की अजीब-सी कैफ़ियत होती है। बेनियाज़ी आ जाती है, बेनियाज़ी भू दुनिया से बेरग़बती आ जाती है, भूख नहीं लगती। दुःख, उदासी, गम, सैडनेस, दुनिया से डिस्कनेक्शन, गोशानशीनी की तरफ बंदा जाता है। फिर गोशानशीनी जाने के बाद ये आपके ऊपर इसरार और रमूज़ खुलते हैं। ये वो अलामात हैं, ये वो चीज़ें हैं। अब आखिर में मैं वो तस्बीह आपको शेयर करूँगा। आपने सारी कोशिश कर ली, सारी एफ़र्ट कर ली। अगर आप इन सारी एहतियातों पे ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो जो शॉर्टकट है जिससे आपका मुराक़बा खुल जाएगा। आपने करना क्या है? जो हमारा तस्गीर का अमल है, बैठना है तराई में बैठ गए, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पहले, 11 बार दुरूद पाक बाद में। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, मेरे वो सारे देखने वाले बार-बार कहते हैं दुरूद पाक मस्ट है। मैं भूल जाऊँ, कहूँ ना कहूँ, आपने दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़ लिया आपने, फिर आपने 108 बार पढ़ना है, या अज़ीज़ो मिन कुल्ले अज़ीज़ बिहक़्क़े या अज़ीज़, जो हमारा तस्खीर का अमल है। या अज़ीज़ो मिन कुल्ले अज़ीज़ बहक़्क़े या अज़ीज़। अपने सीने पे फूँक मारें, फूँक मारने के बाद आँखें बंद करें, तो आप पे फ़ौरी तौर पे गनूदगी आनी शुरू हो जाएगी। एक बात ज़हन में रखें कि जब तक आप इस दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, उस दुनिया की रोशनियों से वास्ता नहीं पड़ेगा। आपने इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है, ज़ाहिरी आवाज़ को बंद करना है, तो बातिन की आवाज़ ऑन होंगे। जब आप दिल के तसव्वुर करेंगे, एकदम आपको वहाँ पे ना रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। रोशनी के बाद बादल, आसमान, बादल, ये सारे मंज़र शुरू हो जाएँगे। ये मुराक़बा आपने 15-20 मिनट से शुरू करना है, इसको आधे घंटे तक लेके जाना है।
اگر آپ یہ ساری احتیاطیں کرتے ہیں، سارے دھیان رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ مراقبہ آپ کا آن ہو جائے گا، اور مراقبہ آن ہونے کے بعد آپ اس دنیا سے آپ کا واسطہ ہوگا جہاں پہ نور ہے، روشنی ہے، فرشتے ہیں، اولیاء اللہ کی روح ہے، صاحب مزار سے کنیکشن ہے، حضوری ہے، کچہری ہے، سب کچھ وہاں پہ ہے۔ اس طریقے سے آپ کا مراقبہ کھل سکتا ہے۔ آخر میں پھر اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری آواز آج ٹھیک نہیں تھی، لیکن آپ کو چبھ رہی ہوگی، اسے قبول کیجیے گا میری طرف سے۔ اور دوسری بات آخر میں پھر وہی بات کہ ایک نیا یہاں پہ ڈرامہ فراڈ شروع ہو گیا ہے۔ جب استانے پہ بہت سارے لوگ آئے تو انہوں نے جو فراڈیوں نے ایک نیا یہاں پہ کھیل کھیلا ہے کہ کیونکہ استانے کی جگہ کم ہو گئی ہے، بھٹی صاحب کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے لیے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، اس میں پیسے جمع کرائیں۔ یار لوٹ مار کے بڑے-بڑے طریقے دیکھے تھے۔ اب وہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ بھٹی صاحب کے آستانے پہ رش بہت ہوتا ہے، اور واقعی الحمدللہ رش ہوتا ہے۔ تو جگہ کم ہو گئی ہے، وہ جگہ تھوڑی ہے، تو اب ہم نے نا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، تو یہاں پہ پیسے جمع کرائیں۔ بے خدارا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں، میری زندگی کا مشن ہے، جہاں پیسہ انوالو ہوگا وہاں میں کوئٹ کر جاؤں گا وہاں سے۔ نو، 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 نو۔ نو، 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 نو۔ جو میرے پاس جگہ، جو میرے پاس وسائل ہے، میرے حاضر ہے، کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی استانے کے لیے تلاش نہیں ہے، بڑا استانہ ہونا چاہیے۔ بھی رب کو منظور ہے، اللہ میرے وسائل میں خود ہی بن دے گا، اس میں کیا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کوئی ایسا کوئی وہاں پہ ایسے فراڈ جھوٹ میں نہ پکڑا جائے، ایسے جال ساز لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، میری وہ ساری بیٹیاں بہنیں جو ان کی لوٹ مار میں آ رہی، خدا کے لیے ان سے بچ جائیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کا مراقبہ کھلے۔ اگر میری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، اس کو پسند کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اس دعا کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ صدقہ جاریہ تاکہ لوگوں میں کام آ جائے۔ بہت سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سبسکرائب بھی کریں، دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔